हेलो बंटर लोग, वेलकम टू डेटा टू इन्फो। बोले तो पावर बीआई की सीरीज में आपका स्वागत है। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम दैट वी हैवंट सीन और वर्कड ऑन एनी प्रोजेक्ट। तो आज अपन क्या करेंगे, वी विल वर्क ऑन एंड टू एंड पावर बीआई प्रोजेक्ट। ओके, इन दिस प्रोजेक्ट आई विल ट्राई टू टेल यू what are the basic steps, what are the basic common steps that you should take to create an app, a final app in the whole process of Power BI. Okay, before moving forward, ये अपन की वेबसाइट है, दिस इज अवर वेबसाइट data2infolabs.com। यहाँ जाके विजिट करने का एंड आर्टिकल्स पढ़ने का। आई हैव ऑलरेडी रिटर्न एन आर्टिकल, आई विल टेल यू अबाउट इट। आ जाते अपने पहले पावर बीआई में। ओके, so what we are going to do today is whatever basic things we learned so far, on that knowledge we will create a Power BI analysis projects. Okay, so we will take a very common topic. Okay, and that topic is retail sales analysis. You can go for financial domain, you can go for corporate domain, okay, or selling domain, whatever it is. So we will start with retail sales analysis. Okay, so what is this retail sales analysis is all about? I will tell you. First of all, if you go to my site, I have already written one, I think, I have written one article on this, on the same project. Okay, I will try to explain this project using the demo only. Okay, but if you want the whole documentation, this is what you can refer to. Okay, so it's called retail sales analysis in Power BI end-to-end project. All right. Okay, so let's come back to Power BI. So what happens is that let me tell you some steps. Let me show you some steps that we're gonna perform. यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ 3 steps मैंने लिखे लाए। 3 steps I have written. अब इन 3 steps में ये पहली स्टेप्स हम आज देखेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि सारे जो एंड टू एंड जो प्रोजेक्ट है वो एक ही वीडियो में मैं बता पाऊंगा, बिकॉज इट्स अ लॉट। ओके, इट्स अ लॉट टू कवर बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन स्मॉल थिंग्स एज वेल, यू नो। सो what I will do, I will break it down to 1 or 2 videos. Okay, so ये अपना पहला वीडियो होगा, दिस विल बी आवर फर्स्ट वीडियो। सो इन दिस फर्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू कवर दिस मच, एटलीस्ट दिस मच। ओके, व्हाट इज दिस? डेटा कलेक्शन और डेटा गैदरिंग. So I will try to gather or collect all the data to create a report first. Okay. After that, we will try to build one report. After building the report, we will try to create a dashboard. Okay. In the Power BI service. Okay. We will see all about Power BI service. What is Power BI service? What is gateway? How to create these schedules and refresh alerts and subscribes. You know. This subscribe, manage subscribe, okay, and share the report or publish the report. And at the final, we will create an app, the final app. All right. We will also see, I think, mock preparation. I don't know, but okay, no problem. We will see mock preparation as well, because you know what happened. Some of the processes don't consider the mock or wireframe of the report, but I will try to tell you. No problem. Okay, so let's start with the basic steps. What it is saying? It is saying that data collection or data requirement. In that, it is saying BRD or FRD documents. See, first 2 points. BRD or FRD documents. What does BRD stands for? Business requirement document or functional requirement document. Okay. So what happens? Let me show you. Let me show you the document. How does it look like? Okay, this is how the BRD or FRD documents looks like. Okay, so there all the requirements given by client will be mentioned in this document. Okay, so sometimes what happens, some clients gives you BRD as well as the FRD. Okay, or sometimes some clients gives you only BRD documents. Okay, it depends on the clients to clients. Okay, if you have big project to cover up, big organization you are working in, तो क्या होता है कि बहुत से अलग अलग डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं बीआरडी और एफआरडी के अलावा भी, ठीक है, तो वो तुम्हें मेंटेन करके रखने पड़ते हैं तुम्हारे पास। ऑलराइट, सो उसमें पूरा फीचर्स और रिक्वायरमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, ठीक है। फॉर सिक्योरिटी रीजन आई एम नॉट शोइंग दिस ऑल डॉक्यूमेंट्स टू यू। ओके,
It depends on project to project, but whatever the common documents are there, I'm trying to showcase to you. Now, this is not the real document, by the way. Okay, this is a sample demo of that document. It's like a mimic. So what it is saying in this document, in this BRD document, they are showing you what are the requirements they want. Okay, like list of all the tables. Okay, list of all the tables. After that, each and every task and how they want that task to complete. Okay, how they want that report to generate the information. Okay, from data modeling to data calculation, all those things will be given in this document. So we will do this one by one. All right, so don't worry, it's not like we won't be doing. So you can go ahead and read this document. Okay, so what it is saying that it wants us to assemble sales report with different visuals to best fit the sales insights in a one single dashboard. Okay. We will do that. We will create a report, we will create a dashboard and all those stuff. उन्होंने क्या दिया है? They gave us कुछ 5 से 6 फाइल्स उन्होंने दी है. ठीक है, हमें 5 से 6 फाइल्स दी है. सेल्स की फाइल्स दी है, कैटेगरी की फाइल्स दी है. ठीक है, उन्होंने जियोग्राफी का डेटा दिया है, प्रोडक्ट का डेटा दिया है, सेल्स का डेटा दिया है ना. सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स रिप माने रिप्रेजेंटेटिव, उन्हें सब कैटेगरी का भी डेटा दिया है. तो ये डेटा जो है अलग अलग फॉर्मेट में है. कुछ एक्सेल फाइल है, कुछ CSV फाइल हो सकती है, कुछ डेटा ऐसा हो सकता है जो अलग अलग लोकेशन पे हो, अलग अलग डेटाबेस में हो, है ना. तुम तो इतने लकी नहीं हो सकते कि सारा डेटा एक ही जगह पे होगा और बस तुम पुल कर लोगे या इंपोर्ट कर लोगे. दिस इज नॉट हैपन्स. ओके, समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि डेटा अलग अलग लोकेशन पे होता है और तुम्हें अलग अलग रिसोर्सेज से वो अलग अलग लोकेशन से वो इंपोर्ट करना पड़ता है. इन दैट केस हाउ टू डू इट, वी विल सी दैट सिनेरियो एज वेल. ठीक है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, मेरा फोल्डर दिखा देता हूँ. आई विल शो यू माई फोल्डर वेयर आई केप्ट ऑल माई डेटा. ओके, so this is BRD document. You can go ahead and access this. I will give you the link in the description down below. Okay, for all the data set. Now see this data folder. I go inside data folder and there are 2 folders, sales and dimensions. In the dimensions folder हमें dimensions का data मिलेगा. In the sales folder हमें sales का data मिलेगा. If I open the sales folder, I have the sales information. Okay, like अगर मैं किसी एक को मैं ओपन करके बता भी दूँ 2014, 15, 16, 17 ऐसे ईयर वाइज सेल्स का डेटा है. ठीक है, अगर 17 के बाद 18, 19 भी आता है तो उसके नीचे हम फाइल्स ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या है, बस वही अपना कॉमन सा डेटा है. ठीक है, इसमें सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी. ठीक है, यूनिट्स कितना है, किसने डेट में है, कौन सी लोकेशन है ना. सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की ID है, डिस्काउंट कितना हुआ, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हुआ, एंड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, तो हर एक फाइल में, हर एक सेल्स के फाइल में ये सेम चीज़ें होगी. ठीक है, अगर कोई नया डेटा आता है तो ये इसी फाइल में ऐड होता रहेगा. ऑलराइट, तो ये बात है. डायमेंशंस में क्या होगा, डायमेंशंस में डायमेंशन का डेटा होगा, जैसे कैटेगरिकल डेटा हो गया, जियोग्राफिकल, प्रोडक्ट के बारे में डेटा, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के बारे में डेटा, सब कैटेगरीज के बारे में डेटा. ओके, सो आई विल टेल यू ऑल अबाउट दिस. ओके, सो दीज आर 2 types of data. Now we have learned what is dimensions data and what is fact table data. Okay, what is the difference between fact table and dimension tables data? तो अपन ने ये देखा है पहले, तो मैं उसको एक्सप्लेन करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है डायमेंशंस के अंदर के जो भी फाइल्स है ये अपना डायमेंशन डेटा हो गया. तो क्लाइंट ने हमें ऑलरेडी वो दे रखा है, और सेल्स मतलब अपना फैक्ट टेबल का डेटा हो गया, है ना. ऑल न्यूमेरिकल्स वैल्यूज, है ना, जो मतलब उसकी साइज सबसे ज़्यादा होती है तो वो फैक्ट टेबल होता है. तो ये सेल्स डेटा अपना फैक्ट टेबल का डेटा हो गया. बहुत बढ़िया. अब क्या करते हैं अपन, एक काम करते हैं, मैं थोड़ा BRD डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ. BRD डॉक्यूमेंट्स में कुछ टास्क ऐसे ही है. ठीक है, पहले तो इंपोर्ट करना पड़ता है सब कुछ. ठीक है, तो कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, देखो ये सेल्स का है, एक्सेल फाइल है, वो एज इट इज इंपोर्ट कर देंगे. ठीक है, आई मीन हाँ, वो सेल्स फाइल एज इट इज इंपोर्ट कर देंगे. फिर कैटेगरिकल फाइल्स है, एक्सेल फाइल है ना. प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट वाला डेटा है ना, अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट के साथ थोड़ा कुछ अलग करेंगे. प्रोडक्ट वाला डेटा जो है हम वो डेटाबेस से इंपोर्ट करेंगे. तो मैं वो सिनेरियो भी दिखाऊंगा. ओके, कि डेटाबेस से भी डेटा कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं. बाकी CSV फाइल, एक्सेल फाइल है, वो एज इट इज अपन इंपोर्ट करेंगे. इफ यू नो
पावर बीआई में स्टोरेज मोड्स होते हैं कि तुम किस तरह से डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। पहला चीज होता है स्टोरेज मोड का इंपोर्ट मोड, फिर होता है लाइव मोड, है ना, लाइव मोड भी होता है, फिर डायरेक्ट क्वेरी मोड भी होता है मेरे ख्याल से, है ना। तो और एक कुछ एक कंपोजिट मोड भी होता है कुछ, ठीक है। तो उसमें वो डायरेक्ट क्वेरी का लाइव कनेक्शन और इंपोर्ट कनेक्शन एक कंबाइन मिला के वो स्टोर करता है, तो वो होता है, पर मैं उसमें नहीं जाऊंगा फिलहाल। सो राइट नाउ वी आर डूइंग ओनली इंपोर्ट मोड वाला स्टोरेज, ठीक है। सो चलिए आते हैं पावर बीआई में। अपन क्या करते हैं, वो डेटा एक एक करके इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो चले जाते हैं पहले गेट डेटा में। गेट डेटा में एक्सेल फाइल है, एक्सेल वर्कबुक अपन कर लेते हैं इंपोर्ट, जाते हैं डेटा में, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं है मेरा, कहाँ पर है, हाँ यहाँ पर है, ये देखो। मैं जाता हूँ पहले डायमेंशन डेटा सारा ले लेता हूँ, मैं काम करता हूँ डायमेंशन डेटा पहले सारा ले लेता हूँ, ठीक है। कैटेगरी, क्लिक ऑन कैटेगरी, ओपन, एक एक करके मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है, इंपोर्ट कर लेता हूँ। हो जा बेटा, ओके। ये देखो, ये तुम्हें दो टेबल्स की फॉर्मेट बता रहा है, तुम टेबल फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में तुम अपना ये नॉर्मल टेबल फॉर्मेट है वो ले लो, ठीक है। तुम देख पा रहे हो डेटा उसमें दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। ट्रांसफॉर्म करने की फिलहाल इसको जरूरत नहीं है, बट मैं हम ट्रांसफॉर्म करेंगे जरूरत पड़ी तो, ठीक है। फिलहाल इसको लोड कर देते हैं, ठीक है, एक एक करके करेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा, जल्दी लोड हो जाए बेटा। इट्स टेकिंग टाइम। सो हमारे पास हमने 4 एक्सेल फाइल से ये कर लिए, इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। राइट साइड में तुम देख पा रहे होंगे डेटा पेन में। अब करते हैं एक और डायमेंशन टेबल बाकी है, उस डायमेंशन टेबल का नाम है प्रोडक्ट टेबल, ठीक है। वो प्रोडक्ट टेबल एक काम करते हैं, हम डेटाबेस से इंपोर्ट करते हैं। मेरे पास MySQL वर्कबेंच का डेटाबेस है, ओके। तो MySQL डेटाबेस से वो प्रोडक्ट टेबल इंपोर्ट करते हैं। चले जाते हैं MySQL पे, दिस इज द MySQL वर्कबेंच, ओके। यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस तैयार किया है, यहाँ पे डेटाबेस का नाम देखो, retail_dp। उसके अंदर एक टेबल है, टेबल का नाम है प्रोडक्ट, एक ही टेबल है, ठीक है। मैं उस टेबल को इसको पहले यूज कर लेता हूँ, ओके। और उस टेबल को सिलेक्ट करके थोड़ा शो कर देता हूँ एक बार। ये देखो, ये है मेरा टेबल, इस टेबल का डेटा, ठीक है। हमें यही डेटा इस डेटाबेस से पावर बीआई में इंपोर्ट कराना है, ठीक है। कैसे करने का, पहले वो इंपोर्ट करने से पहले डेटाबेस और पावर बीआई डेस्कटॉप के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। कनेक्शन एस्टेब्लिश कैसे करने का, इस पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट में जाओ, इस MySQL वर्कबेंच में ये ऊपर टैब दिख रहे हैं, इसमें डेटाबेस टैब है, डेटाबेस टैब को क्लिक करो, यहाँ पे कनेक्ट टू डेटाबेस लिखा होगा, कनेक्ट टू डेटाबेस में क्लिक करने का। अब ये जो कनेक्ट टू डेटाबेस वाला विंडो ओपन होता है, यहाँ पे बस देखो कि तुम्हारा यूजर नेम क्या है, यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, या होस्ट नेम। होस्ट नेम होता है लोकल होस्ट, या कभी कभार तुम्हारे यहाँ पे कुछ एड्रेस होगा, ठीक है, वो होगा, या फिर लोकल होस्ट होगा। यूजर नेम देखो मोस्टली रूटी होता है, और पासवर्ड जो मतलब तुमने वो इंस्टेंस बनाने में जो पासवर्ड यूज किया था वो पासवर्ड, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें ये कर लो, कलेक्ट कर लो। और उसके बाद क्या करना, डायरेक्टली आ जाओ पावर बीआई में। पावर बीआई में गेट डेटा पे जाने का, गेट डेटा पे मोर पे चले जाते हैं। मोर पे जाने के बाद डेटाबेस में चले जाते हैं, ठीक है। डेटाबेस में माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस, ये देखो ये है माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस का ऑप्शन। जस्ट क्लिक, select this Microsoft database. We will use this Microsoft database. Now what this Microsoft database will ask us, let me show you. ये हमें पूछता है सर्वर नेम एंड डेटाबेस नेम, ओके, सर्वर नेम एंड डेटाबेस नेम। तो सर्वर नेम क्या होगा, लोकल होस्ट। सर्वर नेम इज लोकल होस्ट, वॉट एवर द योर होस्ट नेम इज, दैट विल बी योर सर्वर नेम। डेटाबेस नेम मुझे पता है, मैंने लिख के रखा है, ठीक है। वो डेटाबेस जो होगा वही डेटाबेस नेम एज इट इज लिखने का।
अगर डेटाबेस नेम थोड़ा सा गलत हो गया, इसके अच्छा है कि तुम वहाँ जाके उसको कॉपी कर लो डेटाबेस नेम। देखो, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी नेम, इस तरह से कॉपी होता है। ठीक है, कोटेशन मार्क्स निकाल देने का। ये रहा। डोंट गो इनटू एडवांस राइट नाउ, इट्स फॉर मोर क्वेरीज एंड ऑल दो स्टफ। जस्ट हिट ओके। उसके बाद वो थोड़ा कनेक्शन पूछ सकता है तुमको, कनेक्शन के लिए कि पावर बी आई और डेटाबेस में कनेक्शन कर लो वगैरह वगैरह। अगर कनेक्शन ऑलरेडी एस्टेब्लिश है तो वो डायरेक्टली तुमको इंपोर्ट करने का ये कर देगा। ये देखो, मेरा कनेक्शन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, तो मुझे यूजर नेम और पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो तुम लोगों को यूजर नेम और पासवर्ड डालने के लिए वो पूछेगा, तो वहाँ पे बस यूजर नेम और पासवर्ड डाल देने का, ठीक है, डेटाबेस का, और ओके हिट कर देने का। तो ये रहा अपना डेटा, उसको मैं अपनी डायरेक्टली लोड कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया, अभी हमारे पास पांच डायमेंशनल टेबल आ गए। ओके, इस 5 डायमेंशनल टेबल में 4 एक्सेल से आया, ठीक है, एक आया डायरेक्ट डेटाबेस से, माइस्क्वेल डेटाबेस से, है ना, प्रोडक्ट टेबल माइस्क्वेल डेटाबेस से आया। मैं क्या करता हूँ, इस प्रोडक्ट टेबल को थोड़ा रीनेम कर देता हूँ। रीनेम कर दूँ तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये क्या नाम से इसको, प्रोडक्ट के नाम दे देता हूँ, प्रोडक्ट ही अच्छा आएगा। ठीक है, वैसे रीनेम कर दो, बढ़िया लगेगा। अब ये तो डायमेंशन डेटा हो गया। अब सेल्स का डेटा भी लाना जरूरी है ना, फैक्ट टेबल, है ना। तो ये फैक्ट टेबल अब मैं थोड़ा यहाँ पे जाके दिखाता हूँ। ये देखो, ये सेल्स का फोल्डर है। इस सेल्स के फोल्डर में अपने पास सेल्स का डेटा है, ईयर वाइज, है ना, ईयर वाइज डेटा है। मैं तुमको एक और चीज बताता हूँ। अगर लेट से हमारे पास 14, 15, 16, 17 का डेटा है, अगर फ्यूचर में जाके हमारे पास 2018 या 19 या 20 का डेटा भी आता है तो वो कहाँ जाएगा? तो तुम इसी फोल्डर में उसको डालोगे। जब वो इसी फोल्डर में डालोगे तो वो एरर शो करेगा, है ना, वो एरर शो करेगा, वो दिखाई नहीं देगा। या फिर तुम एक काम करो कि कोई डेटा यहाँ से तुम डिलीट कर दोगे, जैसे 17 या 16 का डेटा तुमने डिलीट कर दिया तो वो एरर शो करेगा और भी है कि भाई तुमने कोई डेटा मिसिंग है, यहाँ पे ये डेटा मिसिंग क्यों है। ठीक है, तो इस तरह से जो चीजें आती है, इस तरह से जो यूज केस आती है, उसको हैंडल करने के लिए हम एक ऑटोमेशन प्रोसेस इंप्लीमेंट करते हैं ऑन द लेवल ऑफ फोल्डर। ये जो सेल्स का फोल्डर है, इस सेल्स के फोल्डर में, ये जो पूरा फोल्डर है, इस पूरे सेल्स के फोल्डर पे ऑटोमेशन प्रोसेस इंप्लीमेंट करते हैं, ताकि क्या होगा कि अगर कोई नया फाइल आ जाता है उस सेल्स में, फ्यूचर में कोई नया फाइल आ जाता है, तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली उसको रिफ्रेश कर देगा। ठीक है, जस्ट हिटिंग द रिफ्रेश बटन वो नया डेटा पुल कर लेगा। अगर तुमने कोई डिलीट भी कर दिया तो भी एरर शो नहीं करेगा। तो वो चीज करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो सेल्स के अंदर चले जाते हैं और जो ऊपर का एड्रेस है वो एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इस फोल्डर का एड्रेस कॉपी कर लेते हैं और चले आते हैं अपने पावर बीआई डेस्कटॉप पे। यहाँ पर गेट डेटा करके मोर पे चले जाते हैं और मोर पे जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो ये फोल्डर का ऑप्शन है, फोल्डर का ऑप्शन सर्च करने का, फोल्डर, इस फोल्डर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये फोल्डर क्या पूछेगा, ये पाथ पूछता है इस फोल्डर का। ठीक है, उस फोल्डर का पाथ पूछता है, वो पाथ वहां पे कॉपी पेस्ट कर देने का एज इट इज, उसको हिट एंटर कर दो तो क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस तैयार हो जाएगी। हम कंबाइन कर रहे हैं वो जो सारे अलग अलग फाइल्स थे सेल्स फोल्डर में, 14, 15, 16, 17, वो अलग अलग फाइल्स थे, वो सिर्फ एक फाइल में, लार्ज फाइल में कंबाइन हो गए। कंबाइन कैसे हो गए, क्योंकि उसके हर एक फाइल में नंबर ऑफ कॉलम सेम थे, नंबर ऑफ डेटा सेम थे, है ना, आई मीन नेम ऑफ द कॉलम सेम था, डेटा टाइप सेम था, तो हमको कंबाइन करने में आसानी हो गई। तो इसमें देखो लोड का ऑप्शन आता है, ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन आता है, या कंबाइन का ऑप्शन आता है। मैं उसको ट्रांसफॉर्म करूंगा बाद में अगर थोड़ा बहुत जरूरी होगा तो। फिलहाल उसको क्या करता हूँ मैं, कंबाइन कर देता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, कंबाइन कर देता हूँ, कंबाइन एंड लोड। Now see, it is asking you to first check that it is the first file, second file, third file, fourth file, likewise. Okay, so it is combining into only one file.
this combining with only one file. All right, just hit OK over here, I think. Okay, अब जाते हैं टेबल व्यू में, और टेबल व्यू में देखते हैं अपना डेटा. अपने पास सारा डेटा आ गया, अपने पास डायमेंशन टेबल का डेटा आ गया, अपने पास फैक्ट टेबल का डेटा आ गया. ये जो सेल्स का टेबल है वो फैक्ट टेबल है, ठीक है. ये जो सेल्स का टेबल है ये है अपना फैक्ट टेबल. इसमें सारा डेटा है, एक ही साथ कंबाइन हो चुका है. देखो, मोर देन 54,000 लाइन सेल्स में रिकॉर्ड्स. कैटेगरिकल डेटा देखो, थोड़ा डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं बिफोर स्टार्टिंग क्रिएटिंग द रिपोर्ट और एनीथिंग. वी विल अंडरस्टैंड अवर डेटा फर्स्ट लिटिल बिट. कैटेगरिकल डेटा में देखो, कैटेगरी की की दिखाई देती है और कैटेगरी का नाम दिखाई देता है, स्पेशल एंड जनरल. ऑलराइट, इट सीम्स टू बी गुड. इट्स अ टेक्स्ट फॉर्मेट. ओके, और इसको समराइज नहीं किया है और कैटेगराइज नहीं किया है, जो भी है ठीक है. कैटेगरी का है कि इसमें कुछ नहीं है. उसके बाद आता है जियोग्राफी. जियोग्राफी टेबल में देखो कॉलम 1 कॉलम 2 यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है कि जो फर्स्ट रिकॉर्ड है, फर्स्ट रो है, वो कॉलम हेडर पे होना चाहिए था, और यहाँ पे कॉलम और कॉलम 2 कॉलम 3 दिखाई दे रहा है. तो इस डेटा को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, अपन को करेक्ट करना पड़ेगा, है ना. तो वो एक चीज करेंगे, ठीक है. तो ये कंट्री का डेटा है, ये टाउन का डेटा है, और ये कुछ विकिपीडिया लिंक्स है. बहुत बढ़िया. प्रोडक्ट में आते हैं. प्रोडक्ट टेबल में देखो कुछ प्रोडक्ट आईडी, कलर्स, प्रोडक्ट नेम, उसका प्राइस और स्टैंडर्ड कॉस्ट, प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है ना. यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिख रही है क्या? नहीं, मुझे तो कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है, बट एक गड़बड़ मुझे दिख गई. यहाँ पे देखो, ये डायमेंशन टेबल है. प्रोडक्ट कौन सा टेबल है? डायमेंशन टेबल. इस डायमेंशन टेबल में हमेशा याद रखो, किसी भी डायमेंशन टेबल में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए. डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए. अब देखो, इस कॉलम में, प्रोडक्ट आईडी कॉलम में तुम्हें कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज दिखाई दे रही हो. जैसे ये 7 हो गया, ये जो 7 है, ये 7 रिपीट हो रहा है, 7. अब 10 देखो, ये 10 वैल्यू रिपीट हो रही है, 10 की आईडी रिपीट हो रही है. तो ये जो डुप्लीकेट वैल्यूज है हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल. तो वी विल डू दैट एज वेल. ऑलराइट, सो नो प्रॉब्लम. देन देयर इज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव डेटा एज वेल. यहाँ पर भी देखो थोड़ी गड़बड़ हो गई है. कॉलम का हेडर जो नाम है वो कॉलम 1 कॉलम 2 हो गया है, रादर दैन वो होना चाहिए था सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आईडी एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नेम. ओके. और एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे आईडी का जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आईडी है, उसका जो आईडी का वैल्यू है वो किस तरह से दिया है? आईडी हाइफन वैल्यू, है ना. आईडी -1, आईडी -2, आईडी -6, इस तरह से दिया है. अगर तुम सेल्स में चले जाओगे, सेल्स में देखो, इसका जो आईडी रिप्रेजेंटेटिव का जो ये है, वहां पे कुछ ऐसा नहीं दिया है कि आईडी -1, आईडी -2. यहाँ पे डायरेक्टली 1 2 3 4 दिया है. तो हमें वो चेंज करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड वैल्यू के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, जिस तरह से अपने BRD डॉक्यूमेंट्स में अपने क्लाइंट्स ने हमें मेंशन किया है. ये देखो, टास्क 2.3 में उसने मेंशन किया है एक्सप्लिसिटली कि ये जो है ना, ये आईडी हाइफन ये निकाल दो, उसको कंसिस्टेंट रखो, 1 2 3 4 इस तरह से ही रखो, कोई दिक्कत नहीं. तो अपन वैसा ही करेंगे. ओके, ऑल राइट. व्हाट एल्स? सब कैटेगरी में सब कुछ ठीक है क्या? सब कैटेगरी में भी सब कुछ ठीक लग रहा है. बस वहाँ पे जो आईडी हाइफन वाला है वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा उसका वैल्यू, ठीक है, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा वैल्यू को. तो वी विल डू दैट, नो प्रॉब्लम. ऑलराइट, सो वी विल डू दैट ऑल. सो हमने डेटा कलेक्ट तो कर लिया है अभी, ठीक है, डेटा कलेक्ट कर लिया है. राइट नाउ वी हैव टू डू डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. वी विल गो फॉर दैट. ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज दिखा देता हूं. ये जो BRD डॉक्यूमेंट्स है, हमेशा याद रखना, रिपोर्ट्स बनाने से पहले BRD डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है. यहाँ पे सब कुछ दिया होता है, कितने कॉलम्स है अपने, अगर तुम्हारे पास FRD डॉक्यूमेंट्स भी होगा ना, तो उसमें ये भी मेंशन हो सकता है, अगर तुम लकी हो तो, कि तुम्हारे पास टेबल कितने हैं, उस टेबल में कॉलम्स कितने हैं और उसके डेटा टाइप्स क्या होने चाहिए. ये तक कभी कभार मेंशन होता है, बट कभी कभार ही होता है, ठीक है. कुछ क्लाइंट्स they don't even give that much information, so you have to figure that out. Okay, so all right, let's go. And what is the next step? See, we have seen BRD, FRD, we have gathered all the data. Now it's time to clean the data or transform data. Okay, after that we will do data modeling. All right, let's go and transform our gathered collected data. So, okay, here.
data transform. Go to Power Query Editor using data transform. See, this is Power Query Editor. We have our data with us. Okay, left side there is this queries, data queries. All right, and what else? We have right side of applied steps. All right, start with the category table. Okay, the category table data all seems to be correct. See, 100% valid, 100% valid, 0% error, 0% empty. It's showing. Okay. See, first of all, go to the view tab and make sure that you have ticked all this column distribution, column quality, shows white spaces, all this stuff. If you don't click this column profile, that's okay. So make sure all rest of it is clicked so that you can see these terms: valid, invalid, error, empty. Okay. ठीक. So ये 100% valid दिख रहा है. I don't think so we have to change anything in this table. Everything seems to be fine. Just check what is the data type. This data type is 1, 2, 3 correct. This data type is text. It's also correct, I think. Yeah. Go to the geography table. Geography table पे जाके अभी तुम देखोगे इसका जो कॉलम के हेडिंग है वो थोड़ा इनकरेक्ट है. हमें इसको करेक्ट बनाना पड़ेगा. तो इसका जो कॉलम के हेडिंग है वो फर्स्ट रो में आ गया. ये देखो, अब ये फर्स्ट रो को हमें ये हेडिंग में लेके जाना है. We have to take this first row to the heading. How to do that? We have option called use first row as header. Use this option and your first row will be moved to the header of each column. Alright. After doing that, see the applied steps changed. So you can go back to the any applied steps and see if you are doing correctly or not. Okay. You can see that. Alright. What next? We have a sales representative table. Again, I think everything is fine over here. But according to the BRD table, what they want in the task 2.3, they want it to change from ID-6, ID-7. They want it to be only 6753 likewise. तो हम वही करेंगे. ठीक है. तो अपन क्या करते हैं, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं. हमने कॉलम को सिलेक्ट किया, उस पर राइट क्लिक किया. राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आती है एक ऑप्शन रिप्लेस वैल्यूज की. रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक किया, हमें एक पॉपअप ओपन होगा. उस पॉपअप में वैल्यू टू फाइंड, उसमें लिखो ID स्पेस हाइफन. ओके. अब इस चीज को मुझे रिप्लेस करना है ब्लैंक स्पेस से. तो रिप्लेस विथ के साथ मैं कुछ भी नहीं डालूंगा, उसको ब्लैंक ही रहने दूंगा और ओके हिट करूंगा. जैसे मैं ओके हिट करूंगा वो चला जाएगा. ओके. Now our sales representative ID, it's clean. Sales representative names all right. Okay. मेरे ख्याल से ये क्लीन है. उसके बाद सब कैटेगरी देखो. सब कैटेगरी में क्या, सब कैटेगरी में भी सब कुछ सही लग रहा है. 100% वैलिड है. सॉरी, 100% वैलिड है. बट ये जो कैटेगरी की है उस कैटेगरी की को भी हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. तो उसको फिर से रिप्लेस वैल्यूज में चले जाते हैं. रिप्लेस वैल्यूज में उसको ID के साथ, ID को ब्लैंक के साथ रिप्लेस करते हैं, है ना. ID को ब्लैंक के साथ रिप्लेस किया, बहुत बढ़िया. वो तो रिप्लेस हो गया, पर थोड़ा देखो वहाँ पे स्पेस. फर्स्ट रिकॉर्ड के बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ रिकॉर्ड जो है उसके आगे थोड़ा स्पेस है इन कैटेगरी की. अब वो स्पेस भी निकालना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा अच्छे से देखा करो कि वो स्पेस रह गया कि नहीं रह गया. तो मैं काम करता हूँ, फिर से रिप्लेस वैल्यू पे चला जाता हूँ और उसको थोड़ा ऊपर स्पेस दे देता हूँ. ऊपर वाली स्पेस को नीचे वाले ब्लैंक स्पेस से रिप्लेस कर देता हूँ, तो वो भी थोड़ा लाइन में आ जाएगा. बहुत बढ़िया. अब चले जाते हैं टेबल, प्रोडक्ट टेबल. ओके. इसका मैं नाम अलग दे देता हूँ. ये प्रोडक्ट टेबल जो अपन ने किया था ना, मैंने शायद उसका नाम तो चेंज किया था उधर ये कैसे आ गया. प्रोडक्ट नाम दे देता हूँ इसको. ठीक है, ताकि वो प्रोडक्ट ही यूज हो. ठीक है. ये प्रोडक्ट टेबल है अपना. इस प्रोडक्ट टेबल में 100% वैलिड दिखाई दे रहा है सब कुछ. ओके. अब ये देखो, ये प्रोडक्ट टेबल में ना, ये प्रोडक्ट ID में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इस प्रोडक्ट ID में मुझे कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज दिखाई दे रही है. देखो, ये 7 रिपीट हुआ है, ये 10 रिपीट हुआ है ना. हमेशा याद रखो, दिस इज अ थंब रूल दैट डायमेंशनल टेबल में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए. देयर शुड बी नो डुप्लीकेट वैल्यू इन द डायमेंशन टेबल्स, एनी ऑफ द डायमेंशन टेबल. ओके. Sales table is our fact table. Sales table can have duplicate values. There is no problem. We use foreign key in sales table.
But in the dimensional tables, rest of the dimensional tables, we use primary key, and primary key cannot have duplicate values. So what we can do to remove these duplicate values in the product table, we can go in the home tab. In the home tab, we have option where it's there. Okay, remove column, remove rows. Sorry, in the remove rows, if you click down, you find the option called remove duplicates. अब इस remove duplicates को क्लिक करो और इस टेबल में जितने भी डुप्लीकेट्स है वो चले जाएंगे. ठीक है, इट विल बी फिनिश्ड. वेरी गुड. Now what else? Is there anything we need to change? I don't think so. The data type seems to be good because it already identified, the Power BI already identified the data type. If you need, you can change it. कैटेगरी हो गया, मेरे ख्याल से ज्योग्राफी हो गया, है ना, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो गया, सब कैटेगरी भी हो गया, प्रोडक्ट हो गया. सेल्स टेबल देखते हैं. सेल्स टेबल में क्या कहता है भाई? सेल्स टेबल में तो कुछ होना चाहिए खतरनाक. सेल्स टेबल में देखो कुछ अनवांटेड कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं मुझे. सेल्स टेबल में जैसे जाओगे वो पहला ही जो कॉलम है सोर्स डॉट नेम. अब ये जो सोर्स डॉट नेम कॉलम है, इसमें जो चीजें है ये कुछ भी काम की नहीं है. तो मैं क्या करता हूँ, इस अनवांटेड कॉलम को राइट क्लिक करके रिमूव कर देता हूँ. रिमूव. ठीक है, तो सोर्स डॉट नेम कॉलम रिमूव हो गया सेल्स में से. वेरी गुड. बाकी जो है वो था मुझे चाहिए. ठीक है, बाकी चीजें मुझे चाहिए, न्यूमेरिकल चीजें है ना. इसमें डेट टेबल भी है, आई मीन डेट का कॉलम भी है, ये भी काम का है. एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे बीआरडी डॉक्यूमेंट्स में आओगे, बीआरडी डॉक्यूमेंट्स में तुम देखोगे वी हैव दिस टास्क 2.2. व्हाट दिस टास्क इज सेइंग दैट इट इज सेइंग create a unique key, geo key, name that unique key as a geo key, okay, in sales table and geography table. Okay, sales table और geography table में एक geo key नाम की एक unique key तैयार करो. ठीक है, ये हमने हमारे क्लाइंट ने स्पेसिफिकली हमसे पूछा है. We will do that. Okay, let's go to the Power BI editor. You see in the geography table there is no geo key. We can apply that geo key over here as well as over the sales table. Okay, as well as their sales table. ठीक है, तो पहले हम जियोग्राफी पे जाकर के जियोग्राफी में वो स्पेशल यूनिक की अप्लाई कर देते हैं. ठीक है, तो कैसे जाएंगे? ऐड कॉलम में जाएंगे. ऐड कॉलम में तुम्हें मिलेगा इंडेक्स कॉलम. इंडेक्स कॉलम को सिलेक्ट करेंगे. फ्रॉम 1 आई वांट द कीज फ्रॉम 1. टू सी a new column is there. Now name this column as geo key. That's what the client wants. Okay, अब geo key को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. देखो ये जो टाउन और कंट्री है कॉलम, अब इस टाउन और कंट्री कॉलम जो है वो कैटेगरिकल कॉलम है एंड इट इज इन द जियोग्राफी टेबल, सो इट इज ओके. बट दिस टाउन एंड कंट्री कॉलम ना सेल्स टेबल में भी है. सेल्स टेबल में भी अगर तुम देखोगे ठीक से, ये यहाँ पे लोकेशन नाम का एक कॉलम है. उस लोकेशन नाम के कॉलम में टाउन और कंट्री, ये देखो ये सेमी कॉलम के डेलीमीटर पे यहाँ पे रिकॉर्ड पड़ा है. तो ये तो भाई ये तो कैटेगरिकल कॉलम हो गया. तो ये कैटेगरिकल डेटा हमारे सेल्स टेबल में क्या कर रहा है? वी डोंट वांट दैट. अगर हमको ये कैटेगरिकल डेटा निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वो जो जियो की है वो जियो की यहाँ पे लानी पड़ेगी. ये जो जियोग्राफी टेबल में हमने जियो की बनाई है, ये जियो की क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये जियो की रिप्रेजेंट कर रही है कंट्री और टाउन. देखो ये कंट्री में चेक रिपब्लिक और प्राग, चेक रिपब्लिक और प्राग कंबाइन मिलके हम असाइन कर सकते हैं नंबर 1, है ना. हम सिर्फ नंबर 1 बोल सकते हैं, जियो की नंबर 1. इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो समझ जाएगा कि ये चेक रिपब्लिक और प्राग की बात कर रहा है. अगर जियो की नंबर 6 की बात हो जाएगी तो वो क्या समझ जाएगा कि ये चेक रिपब्लिक और ऑस्ट्रिया की बात कर रहा है ना. तो अगर वो जर्मनी और बर्लिन की बात करेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि वो जियो की 4 की बात कर रहा है. तो ये अपन को समझना पड़ेगा. ठीक है, वेरी गुड. तो अपन क्या करते हैं, ये जो जियो की है हम यहाँ पे लेके आते हैं सेल्स टेबल में. तो पर उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसको अलग करना पड़ेगा. कंट्री और टाउन को अलग करना पड़ेगा सेल्स टेबल में. तो अपन क्या करते हैं, ये जो लोकेशन वाला कॉलम है ना उसको स्प्लिट कर देते हैं. ठीक है, कॉलम सिलेक्ट करा. कॉलम सेलेक्ट करने के बाद चले जाते हैं होम टैब. होम टैब पे देखो यहाँ पे मर्ज क्वेरीज है. ओके, सो मर्ज क्वेरीज करने से पहले मुझे इसको स्प्लिट करना पड़ेगा ना. सॉरी, स्प्लिट कॉलम है. स्प्लिट कॉलम पे जाओ, स्प्लिट बाय डेलीमीटर करो. ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे
सेमी कॉलम का डेलीमीटर दिख रहा है, तो ये सेमी कॉलम का डेलीमीटर ही उसको सिलेक्टेड रहने दो, ठीक है। ईच ऑकरेंस ऑफ द डेलीमीटर, हर एक डेलीमीटर के ऑकरेंस पे भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको ओके कर देता हूं। तो अभी क्या हो गया कि ये एक कॉलम दो अलग अलग कॉलम में डिवाइड हो गया, कंट्री एंड टाउन। तो मैं इसको नाम दे देता हूं, कंट्री एंड टाउन, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये देखो ये अलग हो गया, बहुत बढ़िया। What next? What next? What next? Do we have anything next? I think, yeah, it's fine. But ये कैटेगरिकल डेटा है, ठीक है। ये कंट्री और टाउन कैटेगरिकल डेटा है, हम ये कैटेगरिकल डेटा अपने फैक्ट टेबल में बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो इसको मैं रिप्लेस करूंगा जियो की से, ठीक है। जो जियो की हमने तैयार की थी जियोग्राफी टेबल में, हम उससे उसको रिप्लेस करते हैं। तो क्या करने का, यहाँ पे मर्ज क्वेरीज पे जाने का, मर्ज क्वेरी, ठीक है। यहाँ पे मैं नई क्वेरी मर्ज कर रहा हूँ, आई मीन एग्जिस्टिंग टेबल में ही मर्ज कर रहा हूँ, नई क्वेरी नहीं कर रहा हूँ, एग्जिस्टिंग टेबल में ही। फिर मर्ज क्वेरी का ऑप्शन सिलेक्ट करने का, देखो सेल्स टेबल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैं नीचे क्या करता हूँ, जियोग्राफी टेबल सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो कॉमन कॉलम्स है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कंट्री, कंट्रोल दबा के क्लिक करो और मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्री और टाउन सेल्स टेबल में। अब जियोग्राफी टेबल में भी कंट्री और टाउन, अब ये कंट्री और टाउन के बीच में वो मैच करेगा, देखो ये कॉलम्स को, रिकॉर्ड्स को मैच करा। लेफ्ट आउटर ज्वाइन ही रहने देते फिलहाल, ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्लिक चेंज नहीं करते हैं, ओके दबा देते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये देखो एक नया कॉलम तैयार हो गया जियोग्राफी। इस जियोग्राफी कॉलम को मैं क्या करता हूँ, मेरे पास मुझे नहीं चाहिए कंट्री, मुझे नहीं चाहिए टाउन, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए विकिपीडिया, ठीक है। मैंने वहाँ का वो पूरा डेटा इधर लेके आया, मुझे सिर्फ चाहिए जियो की, तो मैं जियो की ही रखूंगा, ठीक है। जियो की ही रखूंगा और इसको कर दूंगा ओके। जैसे मैं ओके कर दूंगा तो मुझे सिर्फ जियो की, वहाँ की जियो की यहाँ पे मिल गई, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका कॉलम का नाम भी चेंज कर देता हूँ जियो की, ठीक है, ताकि मैं आगे चल के जियोग्राफी और सेल्स टेबल के बीच में रिलेशनशिप बना पाऊँ बेस्ड ऑन कॉमन कॉलम, ठीक है। अब मेरे पास जियो की आ गई, तो मैं ये टाउन और कंट्री कॉलम है, इसकी क्या जरूरत है मुझे, मैं उसको निकाल देता हूँ। आई विल रिमूव दिस टू कॉलम्स, है ना। इसका अभी मुझे कोई काम नहीं। देखो क्लीन हो गया कि नहीं डेटा, जो ज्यादा डेटा था अपने पास अपन ने उसको क्लीन करके छोटा बना दिया, बहुत बढ़िया। अब पहले से देखते हैं, कैटेगरिकल डेटा मेरे ख्याल से क्लीन हो गया, बहुत बढ़िया। जियोग्राफी भी क्लीन हो गया, 100% क्लीन है कि नहीं, इट सीम्स टू बी क्लीन, 100% वैलिड। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, इट आल्सो सपोज टू बी वैलिड, यस। सब कैटेगरी भी मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे ना, यहाँ पे वो कैटेगरी की में मुझे 1 2 3 की जगह ABC क्यों दिखा रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको नंबर करता हूँ, होल नंबर। तो जैसे मैं इसको होल नंबर करता हूँ ये इधर हो जाता है, हाँ ये ठीक है। अदरवाइज ये मुझे समझ में नहीं आता कि कैटेगरी की यहाँ पे क्यों ऐसा है। सेल्स टेबल में जाता हूँ, यहाँ पर कैटेगरी की नाम का कुछ ये है क्या, सेल्स टेबल में कैटेगरी की कुछ नहीं है। कैटेगरी और सब कैटेगरी में, हाँ ये देखो कैटेगरी की, तो ये राइट साइड में होना चाहिए, 1 2 3 होना चाहिए था उसका, करेक्ट। सो दैट्स वाई सेल्स तो ठीक है, मेरे ख्याल से प्रोडक्ट भी ठीक है, राइट, प्रोडक्ट ठीक है, हाँ ओके, वेरी गुड। वन मोर थिंग, you look at this applied step on right hand side. What you can do, there are predefined names, I mean the applied step names are there, you know, so you can give some descriptive names to the each step you have changed. Like you remove this column, you know, you remove one column, so you can just right click it and say rename, and you can give more descriptive name, ठीक है। तो तुम बता सकते हो रिमूव कॉलम, कौन सा कॉलम रिमूव किया तुमने, लोकेशन कॉलम को रिमूव किया, है ना, आप कंट्री कॉलम को रिमूव किया, रिमूव बिग कॉलम। इस तरह से तुम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव नाम दे सकते हो। तो इसका क्या आई मीन इंपॉर्टेंस है, ये गुड प्रैक्टिस है, बिकॉज
लेट से तुम्हारे टीम मेंबर्स को पता लगना चाहिए कि तुमने एग्जैक्टली स्टेप पे क्या किया, तो ही विल गो एंड लुक एट इट, यू नो। तो इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू मेंटेन दिस। तुम बहुत डिस्क्रिप्टिवली लिख सकते हो बाय द वे, ठीक है, तो मैंने तो छोटा सा लिखा है, तो मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक सो वी हैव ऑल द थिंग्स प्रिपेयर्ड विद अस, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा ये देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। ये टास्क 2.1 अपन ने किया, 2.2 भी किया, ठीक है, 2.3 भी अप्लाई किया मेरे ख्याल से, है ना। और क्या कर सकते हैं अपन, ये देखो इसने क्या कहा है, क्रिएट अ न्यू कैलेंडर टेबल, मतलब एक डेट टेबल अलग से बनाओ, ये बोला इसने। ठीक है, ये करते हैं अपन, ठीक है। पहले आ जाते हैं यहाँ पे अपने और क्वेरी एडिटर पे, और इसको ये डेटा जो अपन ने क्लीन किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, इसको मैं क्लोज एंड अप्लाई कर देता हूँ। ये पहले लोड कर लेता हूँ, ठीक है। Come back to the table view. Okay, we have all the data with us. Okay, now come back to the model view. Now you see in the model view we have our all tables. Okay, tables are listed. Some of the relationship has been established by default because Power BI वैसे बहुत होशियार चीज है, तो वो अपने हिसाब से कुछ रिलेशनशिप्स बना देता है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, जो बचे हुए रिलेशनशिप्स है वो बनाते हैं। जो फैक्ट टेबल है उसको बीच में लेके आते हैं। फैक्ट टेबल कौन सा, सेल्स टेबल है, उसके सराउंडिंग बाकी टेबल्स रखते हैं, जैसे जियोग्राफी हो गया, है ना। और क्या करते हैं, कैटेगरी नीचे लेके आते हैं, है ना। और ये सेल्स वाला जो है, ये सेल्स वाला, सेल्स के साथ कौन सा है अपने पास, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आईडी। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आईडी मेरे पास सेल्स में भी है और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में भी है। तो ये ऐसा मैं खींच के यहाँ पे लेके आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, एक नया रिलेशनशिप बन जाएगा इन दो टेबल्स के बीच में, ठीक है। हो जाए बेटा, हाँ ये देखो ये नया रिलेशनशिप बन गया, बहुत बढ़िया, 1 to many। व्हाट एल्स, देयर इज दिस टेबल, दिस टू टेबल्स which already created the relationship, and there is this one table, category table, right? So category table, we have category key, and who else have category key? The subcategory table will have category key. All right, so I will just arrange it real quick like this. आजा बेटा, तू नीचे आजा, तू ऊपर आजा, तू इधर आजा, और तू ऊपर चले जा, ठीक है। तो ये ठीक है, ये प्रोडक्ट का ले लेता हूँ मैं इधर, ये लेता हूँ मैं इधर, ठीक है। तब देखो ये जो कैटेगरी है, मैं अरे सॉरी, सब कैटेगरी इधर होना चाहिए ना। हाँ, तो मैं कैटेगरी की को इस कैटेगरी की के साथ मैच कर देता हूँ सब कैटेगरी टेबल में, और इसके साथ ये रिलेशनशिप क्रिएट कर देता हूँ। ये देखो अभी क्या हुआ, अपने पास ये ऊपर 3 टेबल का रिलेशनशिप बन गया, ये नीचे 3 टेबल का बन गया, ठीक है। तो और एक चीज करते हैं, सेल्स टेबल और प्रोडक्ट टेबल के बीच में भी मेरे ख्याल से कॉमन कॉलम है, जो कि है प्रोडक्ट आईडी। ये देखो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर भी है, प्रोडक्ट आईडी इधर भी है ना। तो ये प्रोडक्ट आईडी और ये प्रोडक्ट आईडी मैं कर देता हूँ मैच, और रिलेशनशिप बना देता हूँ, ठीक है। तो सेल्स टेबल अपना फैक्ट टेबल हो जाएगा, और बाकी जो टेबल्स है, रेस्ट ऑफ द टेबल्स, वो डायमेंशन टेबल्स हो जाएंगे, ठीक है। सेल्स टेबल में डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती है, डायमेंशनल टेबल्स में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो ये कौन सा स्कीमा हो गया, ये स्टार स्कीमा तो नहीं लग रहा। स्टार स्कीमा में या इसे सब डायमेंशनल टेबल्स नहीं होते, सब डायमेंशनल टेबल्स होते हैं किसमें, स्नोफ्लेक स्कीमा में। तो ये स्नोफ्लेक का स्कीमा लग रहा है ना। ओके, ठीक है। सो व्हाट नेक्स्ट, I think we can create a date master table. I think we should create a date master table as per the BID documents. If you see over here, you see task 2.4, they are asking us explicitly to create a calendar table. What they are asking? The calendar table. All right. So create the calendar table with the date master table. All right. So it is always a good practice if you have, let's say, I will show you.
in the sales table, you see we have the date column. See what we have? We have the date column in the sales table. All right. Let me just. I just want to show this not like this. Okay. I just want to show this one very differently actually. What I will do? I just go over here the format. I want a very short format. Okay. Show me with the very short format. Okay. Now this short format is fine for me. ठीक है. तो मैं क्या चाहता हूँ, अगर कहीं पर भी तुम्हें डेट का कॉलम मिले तो उस डेट के कॉलम से तुम एक नया डेट मास्टर टेबल बना लो. इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि ये इजी हो जाएगा अगर तुम फ्यूचर में इफ यू वांट टू यूज टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस, इट विल बी इजी फॉर यू टू यूज दैट. ऑलराइट, ठीक है. So let's go. What I will do on here only, I will go to home and I will click on new table because I have to create a new date master table, a separate date master table I have to create. Okay, so I will take this date column from sales table. Okay, aja beta. Okay, so what I will do, I will just इसको जूम करेंगे, जुम्बा. ठीक है, इसमें लिखेंगे अपना फॉर्मूला. डेट मास्टर टेबल का नाम दे देते हैं डेट मास्टर. इज इट फाइन? है ना. देखो, फैक्ट टेबल को भी कभी कभार मास्टर टेबल बोलते हैं, डेटा मास्टर टेबल बोलते हैं, है ना. तो डायमेंशनल टेबल को डायमेंशनल टेबल ही कहते हैं, बट डेट टेबल को डेट मास्टर टेबल कह सकते हैं तुम. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का. अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग नाम होते हैं, तो इस हिसाब से चलो, बात एक ही है. तो अपन क्या करेंगे, कैलेंडर फंक्शन यूज करेंगे. अपने पास कैलेंडर फंक्शन है बोले तो इस कैलेंडर फंक्शन में अपन क्या डालेंगे, कैलेंडर फंक्शन में दो पैरामीटर चाहिए, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट. अपन क्या करेंगे, अपन सेल्स टेबल को एक्सेस करेंगे. सेल्स टेबल को एक्सेस करेंगे और उसकी फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट लेंगे. ठीक है, तो अपन का अपने पास एक फर्स्ट डेट नाम का भी ये है, RS. ठीक है, फर्स्ट डेट में मेरे ख्याल से सेल्स टेबल का डेट फंक्शन होगा. ठीक है, तो यहाँ की फर्स्ट डेट और मेरे पास लास्ट डेट वाला भी फंक्शन होगा, तो यहाँ की लास्ट डेट. ठीक है, आई एम नॉट रॉन्ग, इज सपोज टू बी फाइन. ओके, so what will happen, these two parameters I have given, first date and last date. तो इन फर्स्ट डेट और लास्ट डेट के बीच में जितने भी डेट्स है वो सारे डेट्स आ जाएंगे हमारे न्यू मास्टर डेट मास्टर टेबल में. ठीक है, इंक्लूडिंग फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट. ठीक है, इंक्लूडिंग फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट. इसको कर देते हैं कमिट. जैसे इसको कमिट कर देते हैं, वो जो डेट कॉलम है वो उठ के इधर आ जाएगा. इधर दिस अवर डेट कॉलम, इट्स लुकिंग नाइस. मैं क्या करता हूँ, इसका फॉर्मेट फिर से चेंज कर देता हूँ. मेरे को शॉर्ट वाला ही चाहिए वीडियो. ठीक है, आई वांट दिस शॉर्ट फॉर्मेट. वेरी गुड, आई एम लविंग इट. व्हाट नेक्स्ट आई हैव टू डू. देखो, ये जो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस होते हैं ये मास्टर टेबल क्रिएट करने के लिए बहुत काम आते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर क्लाइंट ने तुम्हें बोला आई वॉन्ट द सेल्स बाय मंथ, आई वॉन्ट द सेल्स बाय ईयर, गिव मी द सेल्स बाय क्वार्टर, पर वीक, पर डे, तो कैसे देने का. अगर तुम्हारे पास डेट मास्टर टेबल क्रिएट करा होगा तो तुम आसानी से उसको फिल्टर कर सकते हो. ठीक है, इसीलिए डेट मास्टर टेबल की जरूरत होती है. नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, इस डेट में से ईयर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ईयर. ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक नया कॉलम बनाते हैं, इसी में न्यू कॉलम कर लेते हैं. इस न्यू कॉलम में, अच्छा बेटा ये भी बड़ा स्लो है, इस न्यू कॉलम में अपन डालते हैं ईयर कॉलम. ईयर, ईयर में ईयर नाम का फंक्शन है अपने पास, है ना. इस ईयर नाम के फंक्शन में क्या घुसाएंगे अपन, ईयर नाम के फंक्शन में मैं अपना डेट मास्टर टेबल घुसाऊंगा. डेट मास्टर टेबल का जो डेट कॉलम है वो दूंगा. ठीक है, उसमें से वो मुझे एक्सट्रैक्ट करके क्या देगा, ईयर एक्सट्रैक्ट करके देगा, सिर्फ और सिर्फ ईयर. ये देखो सिर्फ और सिर्फ ईयर मुझे एक्सट्रैक्ट करके दिया. 2014 से
15, 16, 17 तक, है ना। इसी तरह से एक और कॉलम तैयार करते हैं, मैं मंथ भी एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। लेट्स एक्सट्रैक्ट द मंथ एज वेल। आई विल नेम दिस एज मंथ। मेरे पास मंथ का ये होगा, ठीक है, मंथ का फंक्शन है, इसमें मैं सेम एक मास्टर टेबल की डेट डाल देता हूँ, और इसमें से मुझे मंथ भी ये एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। कमिट कर लेता हूँ। नाउ सी, अब इसने क्या कर दिया, मुझे मंथ तो दिया पर ये मंथ का नंबर दे दिया इसने मुझे। फर्स्ट मंथ का फर्स्ट नंबर, जनवरी के लिए फर्स्ट, फरवरी के लिए 2, इस तरह से, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, मंथ का मुझे नाम भी पता चले, तो मैं मंथ नेम ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? मंथ नेम। मैं एक और कॉलम तैयार कर लेता हूँ, ठीक है, उसको नाम दूंगा मैं मंथ नेम करके, ठीक है। जब बेटा मंथ नेम में ये क्या करना पड़ेगा, मुझे मंथ नेम निकालने के लिए उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। इस फॉर्मेट में क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले डेट, मास्टर डेट का डेट दे देता हूँ, और उसको फॉर्मेट करने के लिए मैं मंथ चाहिए ना, MMMM, आई थिंक दैट इज फाइन, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ कमिट, डबल कोटेशन में मैंने MMM का फॉर्मेट दे दिया। अब देखो ये मुझे मंथ का नाम दे रहा है, नेम ऑफ द मंथ, ठीक है, जनवरी, फरवरी, इस तरह से। बट ये पूरा नाम नहीं चाहिए, मुझे शॉर्ट नेम चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 4M में से एक M निकाल देता हूँ, 3 ही M रखता हूँ। तो व्हाट विल हैपन, आई विल गेट ओनली शॉर्ट नेम ऑफ द मंथ, जैन, फर, like that. See, very good. What else? I can extract quarter as well from date. What? Quarter. So let's create another column and extract the quarter from this date. क्वार्टर को मैं लिख लेता हूँ QTR से, डिनोट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरे पास एक क्वार्टर का एक फंक्शन है बोले तो, I will use this function to extract the date. Okay? I mean extract the quarter from the date column. आजा बेटा, अब ये क्वार्टर में भी मुझे 1 to क्वार्टर देने, देखो 4 क्वार्टर होते हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, है ना। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अब मैं चाहता हूँ मुझे वीक भी पता चले, है ना, वीक का नंबर पता चले, वीक का डे पता चले, उसका नाम पता चले। तो मैं वीक नंबर ले लेता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, मैं हर एक वीक का नंबर निकाल लेता हूँ, है ना, कितने वीक्स होते हैं अपने पास एक साल में, वो पता चल जाएगा हमको, है ना। मेरे पास वीक नाम का एक फंक्शन होगा, हाई मेजर एक नाम का एक फंक्शन होगा, उसमें मैं अपना डेट मास्टर टेबल डाल देता हूँ। क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से और कुछ पैरामीटर नहीं चाहिए इसमें, वीक ही, हाँ ठीक है। तो इसको कमिट कर लेते हैं, और क्या हो जाएगा, मुझे वीक नंबर पता चल जाएगा कि कौन सा वीक नंबर है। मेरे ख्याल से बहुत वीक्स होते हैं, कितने वीक होते हैं मुझे भी याद नहीं, कितने 52 वीक्स होते हैं एक साल में, कि 53 वीक्स होते हैं, एनीवे जो भी है। उसके बाद वीक डे भी निकाल लेते हैं भाई, अब इतना निकाल ही लिया है तो वीक डे भी निकाल लेते हैं। इसको कॉपी कर लूंगा, मेरे पास वीक डे का भी फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। वीक डे का फंक्शन कहा है ना, ये वीक डे का फंक्शन यूज कर लेते हैं। इस वीक डे के फंक्शन में और कुछ नहीं चाहिए ना, मैं ठीक है, इसको मैं कमिट करके देख लेता हूँ। सॉरी अरे इसका नाम एक ही रखा, वीक डे कर लेते हैं ना इसको। वीक डे, वीक नंबर, उसके बाद वीक डे, ये रहा मेरा वीक डे, है ना। इस वीक डे को भी इसने एक नंबर फॉर्मेट में शो करा है, तो ठीक है, ये काम तो आएगा अपन के। बट मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे उसका नाम भी पता चले, है ना। संडे कौन सा है, 1 नंबर का संडे डिनोट होगा, पर उस संडे को मुझे संडे के नाम से भी जानना है। तो मैं क्या करूँगा, उसी फॉर्मेट को यूज करके मैं उसको फॉर्मेट कर दूँगा। मैं एक और कॉलम तैयार करता हूँ विद द नेम ऑफ वीक डे नेम,
ठीक है, इसको तैयार करते हैं वीक एक मेंटेन के नाम से। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं अपन, फॉर्मेट मारते हैं इसको फॉर्मेट मारेंगे तो फॉर्मेट में क्या होना चाहिए, मेरे को पहले सबसे पहले उसको डेट देना पड़ेगा, वो मास्टर डेट का। उसके बाद कॉमा दी के फॉर्मेट का ऑप्शन देते हैं। फॉर्मेट में मुझे वीक डे चाहिए ना, तो वो हर एक डे डी 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 कर देते हैं, मेरे ख्याल से डी 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 होना चाहिए। ठीक है, इसको कर देता हूँ मैं कमिट। तो मुझे संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे देना चाहिए। हाँ देखो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इस तरह से मुझे नाम दे रहा है। अब मैं एक डी कम कर देता हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म में चाहता हूँ। इट्स ओके टू हैव अ शॉर्ट फॉर्म। ओके, तो ये शॉर्ट फॉर्म में दिखाई दे रहा है। वेरी गुड, इट्स लुकिंग फाइन टू मी। ऑलराइट, तो आई थिंक मेरे पास अभी कितने टेबल्स है, ये देखो। आई हैव कैटेगरिकल डेटा विथ मी। ओके, आई हैव मास्टर डेट टेबल एज वेल, जो अपन ने अभी क्रिएट किया है ना, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस के लिए। उसके बाद जियोग्राफिकल डेटा भी है, वो भी क्लीन है। प्रोडक्ट डेटा भी है, सेल्स का डेटा भी है ना। जो न्यूमेरिकल कॉलम्स मोस्टली होते हैं वो सेल्स के टेबल में ही होते हैं। ये सेल्स टेबल अपना फैक्ट टेबल है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव डेटा भी है ना। उसके बाद सब कैटेगरी वाला भी डेटा है। ऑलराइट, नाउ वी हैव ऑल द थिंग्स। लेट्स गो टू द BRD and see if we done all they asked for. Okay, we have created the calendar table. Calendar table मतलब ही वो date master table हो गया। ठीक है, now what they are asking to do some calculation, DAX calculations, we will do those as well. What they are asking, वो कह रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू क्रिएट करो। ठीक है, टोटल रेवेन्यू बनाओ। टोटल रेवेन्यू में क्या बोल रही है, यूजिंग प्रोडक्ट्स रिटेल प्राइस एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय यूनिट्स। ठीक है, ठीक है, काम करते हैं। सेल्स टेबल में अपन टोटल रेवेन्यू नाम का एक कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, ये डैक्स कैलकुलेशन में कॉलम्स बनाने पड़ेंगे अपन। ठीक है, कॉलम बना लेते हो, अभी क्या बोला है तो बनाना तो पड़ेगा। तो सेल्स टेबल में चले जाते हैं। सेल्स टेबल में ऐड न्यू कॉलम ऐड कर देते हैं। ठीक है, डैक्स फंक्शन यूज करके टोटल रेवेन्यू बनाते हैं। टोटल रेवेन्यू का कॉलम बनाते हैं। टोटल रेवेन्यू, स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई तो माफ कीजिए। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू कैसे बोल रहा है ये, मतलब मैं भूल गया। टोटल रेवेन्यू इन द सेल्स टेबल यूजिंग प्रोडक्ट्स का प्राइस, रिटेल प्राइस, ओके, मल्टीप्लाइंग इट विथ यूनिट्स। ओके 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 ओके। सो मुझे क्या चाहिए, इस सेल्स टेबल में एक यूनिट है, उस यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। तो मैं सेल्स टेबल का ये ले लेता हूँ, यूनिट, सेल्स टेबल का यूनिट वाला कॉलम ले लेता हूँ, उसको सब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके साथ, प्रोडक्ट टेबल के। मैं प्रोडक्ट टेबल लेने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, मुझे प्रोडक्ट टेबल मिल ही नहीं रहा। ठीक है, ये ऐसा प्रोडक्ट का टेबल नहीं मिल रहा। तो क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि ये दो अलग अलग टेबल है। सेल्स टेबल अलग है, प्रोडक्ट टेबल अलग है। इन दोनों के बीच में अगर मुझे कोई कैलकुलेशन करनी है तो मैं नहीं कर सकता। तो इसके लिए अपन के पास एक फंक्शन है जो यूज होता है, उसका नाम है रिलेटेड फंक्शन। कौन सा, रिलेटेड फंक्शन। रिलेटेड फंक्शन क्या करेगा, हम दूसरे टेबल में जाके भी चेंजेस, दूसरे टेबल का कोई फील्ड उठा के हम उसके साथ कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, अब सेल्स टेबल का यूनिट ले लिया मैंने, अब मैं रिलेटेड फंक्शन ले लेता हूं। देखो, ये रिलेटेड फंक्शन ले लिया। अब इस रिलेटेड फंक्शन के अंदर अगर मैं प्रोडक्ट टेबल यूज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, है ना। तो उसमें से जो रिटेल प्राइस नाम का जो कॉलम है, मैं उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, दैट्स व्हाट दे आस्क्ड अस। यही अपना टोटल रेवेन्यू। इसको कर देता हूँ कमिट। तो सेल्स टेबल में एक और कॉलम तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये जो कॉलम तैयार करता है ये अपने मॉडल में स्टोर रहता है। मेजर कभी भी मॉडल में स्टोर नहीं रहता, बात याद रखना। ठीक है, ओके, इट सीम्स टू बी नाइस। व्हाट नेक्स्ट दे आस्क्ड अस, वो पूछ रहे हैं टोटल कॉस्ट भी निकालो भाई। टोटल कॉस्ट इन द सेल्स टेबल यूजिंग प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड मल्टीप्लाई इट विथ यूनिट्स। ठीक है, सेम टू सेम ही करना है, कुछ तो भी सेम ही है। ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, दो कॉलम पे चला जाता हूँ। ठीक है, मुझे करना क्या है, मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी। ठीक है, अच्छा बेटा, टोटल कॉस्ट, इसको नाम चेंज कर देता हूँ। टोटल कॉस्ट मुझे यूनिट के साथ ही उसको मल्टीप्लाई करना है। बट रिलेटेड, ये जो कॉलम का नाम है, मैं कॉलम का नाम चेंज कर देता हूँ।
तो कॉलम का नाम होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज आना, हाँ उसको कर देता हूँ मैं कमिट। तो जैसा क्लाइंट ने पूछा हम वैसा ही कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट आ गया। व्हाट नेक्स्ट दे आस्क अस, और क्या पूछा है, और पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट बताओ, सेल्स में ग्रॉस प्रॉफिट बताओ, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, जो अभी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट निकाला था ना उसके बीच में माइनस करो, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। तो ठीक है वही करते हैं, सेम टू सेम करेंगे। न्यू कॉलम लेंगे एंड वी विल डू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या होगा, सेल्स टेबल में टोटल रेवेन्यू का कॉलम होगा माइनस सेल्स टेबल में टोटल कॉस्ट का कॉलम होगा। इस टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है। ओके सी वी गॉट टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट एंड ग्रॉस प्रॉफिट एज दे आस्क्ड अस, ठीक है। ये डैक्स कैलकुलेशंस तो मेरे ख्याल से कॉलम्स के हो गए, कैलकुलेटेड कॉलम्स करके। बाकी जो परसेंट वाले जो है नीचे, ठीक है, एवरेज निकालना है, परसेंट वाली वैल्यूज निकालनी है, तो ये जो हम मेजर क्रिएट करके करना पड़ेगा, तो ये फ्यूचर में अपन करेंगे, डोंट वरी। ऑल दिस स्टफ वी विल डू इन द फ्यूचर, बट राइट नाउ वॉट एवर वी हैव डन लेट्स समराइज दिस। कैटेगरी का ठीक से है ना, हमने न्यू डेट मास्टर टेबल क्रिएट किया है, ठीक है। तो उसके साथ जो डेट मास्टर टेबल क्रिएट किया है उसके साथ रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी ना। तो चले जाते हैं मॉडल व्यू पे फिर से, है ना। ये देखो डेट मास्टर टेबल अपन ने क्रिएट करके रखा है, तो इस डेट मास्टर टेबल को अपन को यूज करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज इट। तो हमें सेल्स टेबल के साथ उसको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। देखो डेट कॉमन कॉलम है, ये रिलेशनशिप बना देते हैं सेल्स टेबल के साथ। देखो 1 to many रिलेशनशिप बन गया, इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। अब ये डेट मास्टर टेबल के थ्रू मैं बहुत सारे चीज़ों को फिल्टर कर सकता हूँ वेरी वेरी इजीली। इफ इन फ्यूचर क्लाइंट अगर तुम्हें पूछेगा गिव मी दिस सेल्स और टोटल रेवेन्यू बाय मंथ, बाय एवरी ईयर और एवरी क्वार्टर और एवरी वीक और एवरी डे, यू कैन इजीली गिव इट टू, राइट। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या क्या किया, ये हमने बीआरडी और एफआरडी के बारे में जाना, हमने डेटा गैदरिंग किया, है ना, डेटा को क्लीन किया, ट्रांसफॉर्म किया, उसके बाद डेटा मॉडलिंग भी किया, ये सारी स्टेप अपन ने की डेटा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो अगले पार्ट में अपन क्या करेंगे, अगले वीडियो में क्या करेंगे, ये जो नया चीज है, अगला चीज है रिपोर्ट बिल्डिंग का, वो देखेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा मॉकअप प्रिपरेशन कैसे करने का, यूआई कैसे बनाने का, रिपोर्ट को बिल्ड कैसे करने का, ठीक है। आरएलएस के बारे में भी जानेंगे, सिक्योरिटी के बारे में भी जानेंगे, और उसके बाद डैशबोर्ड बनाएंगे पावर बीआई सर्विस में, ठीक है, उसको पब्लिश करेंगे। तो ये सारी चीजें अगले वीडियो में देखते हैं। तो ये पार्ट 1 हो गया, ठीक है। नाउ स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2 एज वेल, ठीक है। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हमेशा की तरह गूगू गागा। My name is Lakhan, my name is Lakhan,